Dear friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. Today we are going to start a new topic, knowledge representations in Artificial Intelligence. So this is another one important topic in Artificial Intelligence where we are going to cover all the informations which is regarding to knowledge representations. Hello, I am Mukesh Barapatre, your course faculty. I am here because I love to teach the technical topic. You can find me at mukeshbarapatre@gmail.com. Okay, so this is my personal mail address. You can, if you have any problem, or you can contact me with using that Gmail address. Now let's discuss the syllabus of knowledge representations. What are the important contents with respect to knowledge representations asked in your university examinations or GATE examinations? So knowledge representations, now we will talking about the knowledge representations. So first of all, we need to know that what is knowledge and how to gather the knowledge, and is this a data? We will going to differentiate what is data, what is informations, and what is the knowledge. After that, if we understand what is knowledge, we will discuss how to represent those knowledge so that machine can understand. Okay, because we require that the knowledge representation technique, because we are going to design artificial intelligence program. So if we have a knowledge, like a human being has a knowledge, so according to that knowledge, human being can work. He worked a day-to-day basis. So according to that knowledge, machine can work similarly as a human being act? Okay, so this is nothing about the knowledge representations. So now after that we will discuss what are the issues arises when when we represent the knowledge. So we will discuss different issues in knowledge representations, approaches in knowledge representations, what are the already available or traditional approaches available for the knowledge representations, like a database or inheritance. So like this we will going to talk about different knowledge different approaches of knowledge representations. Introduction to ontology, there is another stream where we discuss the knowledge and knowledge representations. So we will introduce the ontology technique. After that we have another topic, that is logic and inference. Now in here we will discuss what is logic, and according to the logic, can we draw some another conclusions? For example, Ram and Sham are the brothers. Ram and Sham are the brothers. So can I say that Sham is also brother of Ram? According to first statement, Ram and Sham are the brothers. So can I say that Sham is a brother of Ram? Yes. So this is nothing about the inference. Now after that we will discuss what is formal logic, history of knowledges, and we will discuss different techniques of knowledge representations here based on logic. So we have a propositional logic, we have a predicate logic, and we have a different resolutions principles or algorithms which will be used in predicate and propositions logic. This is not knowledge representations. We also have some extra content that comes under the graphical representations or structural representations. So this will be covered, that topic will be covered in another series. So that will be called as structural knowledge representations, where we are going to use semantic networks, scripts, frame, okay, slots and fillers. We will going to discuss all these things. Okay, so this will be a knowledge representation syllabus. So this is nothing about the syllabus of knowledge representations. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, जिसमें आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के नॉलेज को आप रिप्रेजेंट करते हो मशीन के अंदर में. होता क्या है, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पास में कब डेवलप होगा? अगर उस मशीन के पास में या फिर उस सॉफ्टवेयर के पास में अगर उसका खुद का नॉलेज होगा, तभी जाके वो मशीन वर्क कर पाएगी और अपना नॉलेज यूज करके कोई आपका कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएगी. ठीक है. अब ह्यूमन बीइंग के पास में क्या होता है, हमारे पास में डे बाय डे वर्क से हम नॉलेज गैदर करते रहते हैं. हमारे पास में नॉलेज होता है, हमारे पास में रीजनिंग मैकेनिज्म होता है, ताकि हम किसी चीज को हम प्रॉपर्ली उसको कंक्लूजन निकाल सके, रीजनिंग कर सके. तो ये चीजें हमारे पास में ऑलरेडी होती है ह्यूमन बीइंग्स में. बट सिस्टम के पास में ये सारी चीजें नहीं होती. तो हमें क्या करना है, हमें जो भी ह्यूमन बीइंग का जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज को हमें इंटरप्रेट करके किसी नॉलेज बेस के अंदर में, नॉलेज बेस मतलब डेटा बेस के अंदर में इस तरीके से फिट करना है, ताकि उसका यूज करके कोई प्रोग्राम उस मशीन को या फिर कोई उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली वर्क कर पाए.
ठीक है। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये हमारा सिलेबस हमने डिस्कस किया, ये सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमें सामने आने वाले लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉलेज, इश्यूज इन नॉलेज, अप्रोचेस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, लॉजिक एंड इन्फरेंस मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें गेट एग्जाम, जो कि हमें गेट एग्जामिनेशंस के समय में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो टेक्निक्स आती है, एक प्रेडिकेट लॉजिक, एक आता है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं, और प्रोपोजिशनल लॉजिक जिसमें आप कोई भी स्टेटमेंट, जैसे कि जनरल लैंग्वेज स्टेटमेंट जो होते हैं उसका किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मशीन के अंदर में, हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स भी दिए हुए हैं ताकि हम किसी न्यू कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से करेंगे, दैट मींस रीजनिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे वो भी हमारे पास में मिल जाता है। इसके अलावा भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक आती है जो हम सामने में डिस्कस करेंगे, जिसे हम स्ट्रक्चरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। स्ट्रक्चरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में मोस्ट ऑफ दी ग्राफ्स का यूज होता है। ग्राफ में आप देख सकते हो सिमेंटिक यूनिट यूज करेंगे, स्क्रिप्ट यूज करेंगे, फ्रेम्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में ही करनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अभी आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर में बेस्ड होने वाले। तो शुरू करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Once acquire the knowledge must be organized for the use. As a human being हम बचपन से स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, एंड हमारे डे बाय डे हम नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करते जाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास में डेटा होता है, हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे तो हमारा डेटाबेस रेडी हो जाएगा। बट अगर हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें नॉलेज की जरूरत होगी। एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज इन आवर ब्रेन। ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर में बहुत सारा नॉलेज होता है। अब वो नॉलेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे और क्या होता है नॉलेज, एक्चुअली में नॉलेज होता क्या है, क्या वो डेटा है, क्या वो इंफॉर्मेशन है, हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, वंस एक्वायर द नॉलेज मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूज। अगर कोई चीज, कोई नॉलेज अगर हमारे पास में है तो हमें उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना होता है ताकि हम उसको डे टू डे यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एग्जाम क्लियर करनी होती है तो उसके लिए कोई टेक्निक्स यूज करते हैं हम। ठीक है, हो सकता है कि आज मैंने जो टेक्निक यूज किया हुआ है और कल जाके मैं जो वो टेक्निक को रिफाइन करके वो टेक्निक अप्लाई करता हूं तो मेरा जो नॉलेज है वो अपडेट होता है। ठीक है, मुझे एग्जामिनेशन पास करना था, आज मैंने जो टेक्निक अप्लाई की थी दैट इज आवर करंट नॉलेज। सामने में जाकर मैं फिर से एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। तो मैंने क्या किया होगा, मेरा जो करंट नॉलेज था मैंने उसमें इंप्रूवमेंट किया होगा, उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया होगा मेरे टारगेट के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, अपने नॉलेज को अपडेट किया। सिमिलरली अगर आप डॉक्टर्स को देखते हो, डे टू डे न्यू डिसीजेस आती रहती है, तो प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, आप वो बीमारियों को लेकर, उसका ट्रीटमेंट को लेकर वो ट्रायल एंड एरर करते हुए जाते हैं और उसके हिसाब से वो अपना नॉलेज इंप्रूव करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और लास्ट में एक आपको डायग्नोसिस दे देते हैं कि हाँ भाई आपको ये बीमारी है तो आप ये इस टाइप से आप मेडिसिन लीजिए। सो दैट इज नथिंग अबाउट द नॉलेज। ओके, सो वंस वी रिक्वायर द नॉलेज, अगर हमारे पास में एक नॉलेज है तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको प्रॉपरली अपडेट भी करना होता है। सो बेसिकली व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज अ जनरल टर्म। नॉलेज होता क्या है? नॉलेज एक जनरल टर्म है जिसका हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास में नॉलेज होता है, एलिफेंट्स के पास में नॉलेज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास में नॉलेज होता है। बट ये नॉलेज है क्या? नॉलेज क्या आपका डेटा है? नॉलेज क्या आपका इंफॉर्मेशन है? सो दिस इज नथिंग अबाउट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है ये, हमें इसको समझना पड़ेगा। नॉलेज होता क्या? नॉलेज इज अ प्रोग्रेशन दैट स्टार्ट विद द डेटा। अगर आपके पास में कोई डेटा है और वो डेटा से हम उसको इंफॉर्मेशंस बनाते हैं और इंफॉर्मेशंस बनाने के बाद में उसको इंटरप्रेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास में नॉलेज बनेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ नया कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं। ठीक है, रीजनिंग मतलब हम कोई तर्क लगाकर या फिर उसको कोई नया कंक्लूजन्स ड्रॉ करना रहा तो हम उसको बोलते हैं नॉलेज रीजनिंग। ठीक है, तो दैट इज नथिंग अबाउट नॉलेज प्रोग्रेशन। तो हमें ये चीजें करनी होती है। सो नॉलेज इज अ प्रोग्रेशन, मतलब नॉलेज आपका डे बाय डे आपका प्रोग्रेस होते जाएगा। दैट स्टार्ट विद द डेटा, वो हमेशा स्टार्ट होगा आपके डेटा से, विच इज ऑफ लिमिटेड यूटिलिटी।
Okay, by organizing or analyzing the data, we understand what the data means and it becomes the informations. हम इसको सामने में समझेंगे, हमारे पास में डायग्राम है. The interpretations or evaluations of informations yield the knowledge, and understanding of the principles embodies with the knowledge is a wisdom. Okay, तो ये चीजें हमारे पास में होता है, that is data, informations, knowledge and wisdoms. These are the four things we used in knowledge progression. So look at about the knowledge progressions. Knowledge होता क्या है, हमारे पास में knowledge आता कैसे, हम उसको देख लेते हैं. कोई भी चीज हमें अगर हमारे पास में है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं डेटा से. डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अगर कोई स्टेटमेंट यूज करते हो, जनरली फॉर एग्जांपल स्काई इज ब्लू. सो स्काई इज ब्लू आपने देखा होगा, इसके अंदर में बहुत सारे इसमें वर्ड्स है, स्काई इज ब्लू. तो ये जो वर्ड्स है इसको बनाने के लिए हमने आपके अल्फाबेट्स लिए होंगे, इससे हमारा डेटा बना, ठीक है, इससे हमारा सेंटेंस बना और उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग हुआ होगा. तो हमने क्या किया, वो डेटा को ऑर्गेनाइज किया, मतलब वर्ड्स, अल्फाबेट से हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स बनाने के बाद में हमने सेंटेंसेस बनाए, हमने उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया और उसको एक सिमेंटिक, मतलब उसका एक मीनिंग बनाया. तो हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, तो उससे हमारा बनता है इंफॉर्मेशंस. तो sky is blue, it's a one statement, so that is nothing about the informations, this is nothing about the fact. ये हमारी एक फैक्ट बन गया, एक इंफॉर्मेशन बन गई. वो इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तब जाके हमारा बनता है नॉलेज. ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज हम उस नॉलेज का कहीं पे अगर यूज करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंड करके अगर हम कहीं दूसरी जगह या थर्ड जगह पर हम उसका प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा नया कंक्लूजन्स ड्रॉ किया जाता है. सो दैट इज नथिंग अबाउट योर विजडम. तो ये सिंपल सी प्रोग्रेस होती है हमारे नॉलेज की. तो नॉलेज हमारा क्या है, नॉलेज हमारा डेटा से स्टार्ट होता है, डेटा फिर बनता है और एनालाइज करने के बाद में इंफॉर्मेशंस को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसके ऊपर में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब जाके हमारा नॉलेज बनता है. और उसी नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ नए प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रेडिक्शंस लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं विजडम. और विजडम की जगह पे अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में दूसरा टर्म यूज करूं तो हम इसको बोलते हैं रीजनिंग. ठीक है, नॉलेज है तो नॉलेज के थ्रू मैं अगर कोई नया डेटा बनाता हूं या नया कंक्लूजन्स ड्रॉ करता हूं तो मैं उसको बोलता हूं विजडम्स. ठीक है, तो हमारे पास में नॉलेज हमें समझ में आना चाहिए, व्हाट इज नॉलेज. तो अब आते हैं हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर में. हमारे पास में जो नॉलेज है हम वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हमारा मेन इशू यही है कि हमें अपना नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है. ह्यूमन बीइंग के पास में दिमाग है और दिमाग के अंदर में बहुत सारा एक्सपीरियंस है और नॉलेज भरा पड़ा हुआ है. उसको अगर आपको डेटाबेस के अंदर में या फिर मैं सिंपल कहूँ किसी मशीन के अंदर में स्टोर करना होगा तो आप किस तरीके से करोगे. सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. मतलब ह्यूमन बीइंग का जो नॉलेज है या फिर ह्यूमन बीइंग का जो एक्सपीरियंस है, वो आप डेटाबेस के अंदर में किस तरीके से स्टोर करोगे. दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टडी ऑफ वेज हाउ नॉलेज इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड और पिक्चराइज इन द मशीन और whichever जहां पे भी आपका वो यूज हो रहा होगा. अ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस नेचुरली रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम डोमेन. ठीक है, अब हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कुछ अलग नॉलेज हो. एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखी हुई है. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कोई प्रॉब्लम हमें गेमिंग का मिल गया तो हम गेमिंग के तरीके से गेमिंग का नॉलेज यूज करना होता है. तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरली जो डोमेन होते हैं, जो भी प्रॉब्लम डोमेन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा नॉलेज होता है. तो उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्या. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा. ह्यूमन नोज थिंग्स which is the knowledge as per their knowledge. Okay, human knows the things which is the knowledge as per their knowledge. They perform various action in the real world. ठीक है, हमारे पास में हमने जो भी स्टडी किया हुआ है, हमारे पास में जो भी एक्सपीरियंस है, वो हमारा नॉलेज है. ठीक है, और वो उसको हम डे टू डे रियल लाइफ में हम उसका यूज करते हैं. बट हाउ मशीन्स डू ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस एंड रीजनिंग. मतलब हम जो कर पा रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में, क्या वो मशीन किस तरीके से कर पाएगी. सो दिस इज नथिंग अबाउट द
challenge, we have to transfer our knowledge into a machines. अब यहाँ पे हम डेटाबेस यूज करेंगे क्या? यहाँ पे हमारा डेटाबेस यूज नहीं होने वाला. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में आप सिर्फ रोज एंड कॉलम्स में, रोज में आप फील्ड्स मतलब जो इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी की डेटा स्टोर कर पाते हो. बट सपोज अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्काई इज ब्लू, बर्ड्स आर द फ्लाइंग. ओके, तो ये अगर स्टेटमेंट मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है और इसका मैं सामने में जाके यूज करूं, तो इसका ये जो स्टेटमेंट है, इसका इस स्टेटमेंट का मैं सामने में यूज कर पाऊं, तो मुझे इस तरीके से जो भी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट टेक्निक विल बी कॉल्ड एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. ओके, सो how machines do all these things comes under the knowledge representations and reasoning. So reasoning, that is the conclusion parts that is also called as inference mechanisms. Okay, knowledge representations मतलब आपके पास में जो नॉलेज है आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एंड उस नॉलेज का यूज करके जो भी आप इन्फेरेंस निकालोगे या फिर रीजनिंग करोगे, दैट इज कॉल्ड एज रीजनिंग पार्ट और इन्फेरेंस मैकेनिज्म्स. क्लियर है? तो यहां पे हमें हर एक स्टेटमेंट का, हर एक वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली मशीन उस हिसाब से वर्क कर पाए. Knowledge representations, it is also a way which describe how we can represent a knowledge in artificial intelligence. Knowledge representation is not just storing a data into a database. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हम डेटाबेस के अंदर में डेटा स्टोर कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता. सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट स्टोरिंग अ डेटा इनटू सम डेटाबेस, बट इट आल्सो enables an intelligent machine to learn from that the knowledge and experiences so that it can behave intelligently like a human being. ओके, जैसे कि आपके पास में डेटाबेस में अगर कोई डेटा है, उसका यूज करके अगर कोई नए एक्सपीरियंस को डेवलप कर पाए या फिर उसके नए इंटेलिजेंटली बिहेव कर पाए लाइक अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट टाइप ऑफ डेटा और दैट टाइप ऑफ knowledge is used for artificial intelligence. Knowledge representations, knowledge and representations. Now let's talk about knowledge and representations. So problem solving requires a large amount of knowledge and some mechanism for manipulating that knowledge. कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी चाहिए कि जो हमने नॉलेज यूज किया है या फिर जो नॉलेज गैदर किया हुआ है उसको मैनिपुलेट कर पाए और उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाए. सो देयर आर द टू टर्म्स, नॉलेज इज वन टर्म एंड रिप्रेजेंटेशन इज अनदर टर्म. तो नॉलेज हमने ऑलरेडी जान लिए है कि क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन मतलब उस नॉलेज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यही मतलब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. द नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन आर द डिस्टिंक्ट एंटिटी play a central but distinguishable roles in the intelligent system. इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर में ये दोनों अलग अलग जगह पर वर्क करेंगे, दोनों अलग अलग वर्क करेंगे. नॉलेज आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा या फिर जो नॉलेज होगा वो, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और जो टेक्निक्स होगी वो डिफरेंट होगी. सो नाउ व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड. It determines a system competence by it knows. Okay. Now what is representations? Representation is a way the knowledge is encoded. ओके, मतलब जो भी नॉलेज है उसको किस तरीके से इनकोड किया जाएगा, दैट इज नथिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस. इट डिफाइंस द सिस्टम परफॉर्मेंस इन डूइंग समथिंग. इन अ सिंपल वर्ड, वी नीड टू नो अबाउट द थिंग्स वी वांट टू रिप्रेजेंट. Okay, we need to know about the things we want to represent and need some means by which we can manipulate. Okay, so this is the need some means by which the things we can manipulate. Now what we have to represent? Okay, we know about what is knowledge and we have to know about the knowledge, and now let's talk about what we are going to represent in a knowledge. Okay, so knowledge में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्ट हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो ऐसे आप क्या क्या रिप्रेजेंट करोगे? So we need what we represent. Following are the kinds of knowledge which need to be represented in AI systems. For example, we need objects. Okay, all the facts about the object in our word. Example, guitar contains a string, trumpets and brass instruments. So these are the objects. For example, tables, a fan. These are the objects which will be used in our languages. Okay, in our language. So we have to represent the object first. Then events.
Events are the actions which is occurred in our real time or real world. Okay, so we have to represent the events, we have to represent the performance. It describe the behavior which involves the about how to do the things. Okay, we also use meta knowledge. Meta knowledge, it is a knowledge about the knowledge what we know. Okay, we have to represent the facts. Facts are the truth about the real world and what we represent. So these are the things we have to represent in our knowledge. Okay, now let's talk about the knowledge base. Knowledge base is what? A central component of a knowledge base agent is a knowledge base. Okay, it is represented as a KB, knowledge base. It is in a short form we can also call as KB. The knowledge base is a group of sentences. Here sentences are used a technical term and not the identical with the English word. Okay, English language. So in a knowledge base mostly we are used, or mostly we are store facts and informations. So here we are going to store the sentences and the facts. Okay, मतलब यहाँ पे normal sentences store नहीं होने वाले जो हम language के अंदर में use करते हैं. यहाँ पे हम mostly जो universal truth है, informations है, वो store करेंगे. Now let's talk about the knowledge representation technique. We have a different techniques of knowledge representations. First of all, we talk about the logic and representations. मतलब किसी एक स्टेटमेंट के पीछे में जो लॉजिक होता है उसको रिप्रेजेंट कर पाओ. दूसरा होता है हमारे पास में सिमेंटिक नेटवर्क, जहां पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल गूगल में जो भी आपका वर्क होता है वो ग्राफिकल बेस से रिप्रेजेंट होता है, तो जहां पे आप सिमेंटिक नेटवर्क का यूज करते हो. मतलब इन शॉर्ट आप स्ट्रक्चरल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो. प्रोडक्शन रूल्स, मतलब आप अपने नॉलेज को इफ एल्स रूल्स के फॉर्म में आप अपना नॉलेज किसी प्लेटफॉर्म पे आप स्टोर करते हो, तो वो आपका प्रोडक्शन रूल्स में कहलाया जाएगा. फ्रेम्स रिप्रेजेंटेशंस में मतलब आपका फ्रेम्स में आप स्लॉट्स एंड फिलर्स, मतलब छोटे छोटे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्लॉट्स एंड फिलर्स के रूप में आप फ्रेम्स में रिप्रेजेंट करते हो. इसका एडवांस फॉर्म में आप स्क्रिप्ट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो. जैसे कि स्क्रिप्ट मतलब मूवी की स्क्रिप्ट मतलब मूवी की जो स्क्रिप्ट मतलब मूवी की स्क्रिप्ट, जिसमें आप जैसे कि आपका सीक्वेंस एक्शंस और सीक्वेंसेस होता है, पूरी स्क्रिप्ट राइटेड होती है, वो उस तरीके से आप उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आपका स्टार्टिंग होगा, कहीं पे आपका स्क्रिप्ट में कहीं आपका क्लाइमेक्स होगा. ठीक है, ये सारी चीजें आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. लॉजिक रिप्रेजेंटेशंस में आप जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे उसको लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि आपका प्रीपोजिशनल लॉजिक हो गया और प्रेडिकेट लॉजिक हो गया. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस. ओके, इन दिस सीरीज we are going to only concentrate on logic representations. After that we will create a new series which will be where we after that we will discuss in this series we are going to discuss logic representations of knowledge, that means knowledge representations using logic. Okay, so in this series we are going to discuss the knowledge representation technique, that is logic and representations. After that we will create a new series which will where we will discuss semantic networks and frames and script representations of knowledge. Okay, so that's all from today's topic. Thank you.